एज आई वाज सेइंग, ये दो नंबर है 2/7 and 3/5, which is greater? Okay, that becomes difficult at times to identify, isn't it? कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? सो हाउ टू आइडेंटिफाई which number is greater and which number is smaller? One important simple thing is, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर. जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा. तो हियर बिटवीन -7/5 and 7/5, denominators were same. -7 और +7 में +7 is greater, so this was greater. But here the denominators are different. Here the denominators are different. So one simple way is, first make the denominator same or make the denominator equal. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We'll take LCM. LCM of 7 and 5 is 35, or 7 into 5. Simple. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे. तो 2 into 5 upon 7 into 5, and this will be 3 into 7 upon 5 into 7. 2 into 5 is how much? 10. And 7 into 5, 35. 3 into 7, 21. 5 into 7, 35. Now which is greater? Denominator तो same हो गया. Now which is greater, 10 or 21? Which number is greater? 21. 21 is greater, correct? So we put this symbol like this. That is 2/7 is smaller than 3/5, or 3/5 is greater than 2/7. समझे? This is one method of solving, which is greater number. How to compare? चलो ये करो, फिर आगे और बहुत सारी चीजें देखनी है आज हमको, because 1.2 also is going to be there for homework today. ये कॉपी कर लो. हो जाए तो बोलो बेटा. डन. हो गया दोनों का? Finished or not? हो गया सर. हो गया. समृद्धि? Done? Okay. So now let's compare two numbers, -7/9 minus, let's compare the numbers, -7/9 and 4/5. -7/9 and 4/5. We have -7/9 and 4/5. इसको कंपेयर करने के लिए कुछ देखना नहीं है आपको.
इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है बोलो, एनीबडी? विच इज द बिगर नंबर? -7/9 and 4/5, विच इज ग्रेटर नंबर? 9. हाँ 4/9. 4/5. 4/9 है ही नहीं, -5. -7/9. हाँ 4/5 is greater. Why? Because it's on the right side. Because positive number है, ये negative है. Negative will always come on the left side, positive will always come on the right side. Simple. इसके अंदर सोचने का भी नहीं कि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है. अरे एक नेगेटिव है मतलब छोटा है. हाँ दोनों नेगेटिव रहेंगे तो सोचना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो सोचना पड़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला बड़ा, नेगेटिव वाला छोटा. सिंपल इनफ. ओके, दोनों पॉजिटिव है तब डिनोमिनेटर इक्वल करके चेक करना है, दोनों नेगेटिव है तब डिनोमिनेटर इक्वल करके चेक करना है. लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा है, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा. इट इज ऑलवेज ग्रेटर. पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर. ओके, so you can safely say -7/9 is less and 4/5 is greater. -7/9 is less and now what about 5/4 and 7/4? Which is greater? 5/4 and 7/4. Which is greater? 7/4. Samruddhi, which is greater? Samruddhi, I can't hear you. Your voice is not coming. हाँ बहुत वीक आवाज आ रही है तुम्हारी. 7/4. Okay, so we know that this is greater. Now -5/4 and -7/4, which is greater? -7. अच्छा एक मिनट, ये पहले इजी कर लेते हैं. एक मिनट पहले ये करते हैं. -5/4 and 7/4, which is greater? 7/4. Always positive number greater, isn't it? Now what happens? -5/4 and -7/4. Minus. Sumaya is saying something. Bolo Sumaya. So -5/4 ग्रेटर है. क्यों? हाँ. क्यों? समृद्धि ने बोला इसलिए नहीं. तो फिर क्यों? बार बार सर उसको छोटा बोल रहे, थक गए छोटा बोल के, इसके लिए. तो क्यों बड़ा है वो? गिव मी द रीजन. आई वांट द रीजन. राइट रॉन्ग विल डिपेंड ऑन द रीजन. Why is -5/4 greater than -7/4? Why? क्यों बोला आपने? ऐसे ही ऐसे नहीं चलता है, मैथ्स में रीजन चाहिए. समृद्धि, why is it greater? Huh? Because it is the right of the number. Because if I were to draw a number line, see, if I were to draw a number line, and if this was 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -5 is to the right. तो जो राइट में है वो बड़ा है, जो लेफ्ट में है वो छोटा है. सिंपल, isn't it? So -5 is to the right of -7. -5 is towards the right of -7. तो ये छोटा, ये बड़ा, ये हुआ छोटा और ये हुआ बड़ा. So -5 is greater, as -5 is greater than -7. चाहिए तो नंबर लाइन भी बना लो. ये सब कॉपी करना है, ये सब लिख लो, all of this.
Do it fast, then we are going to see one more. अपना 6:30 तक क्लास है ना आज? है, टाइम है, नो प्रॉब्लम, आराम से कर लो, आराम से कर लो, नो हरी. समझना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. Once you understand, then we can proceed further. Done, sir. सुमैया Yes, हो गया? sir. दोनों का भी हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. Let's see all do this. -7/3 -7/3 and -5/2. चलो ये कंपेयर करो. -7/3 and -5/2 कंपेयर करो. ये कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो आप चेक करोगे. Upon 3. -7/3. Okay, we'll see, we'll see. Let Sumaya also finish, then we'll see. Sir, -5/2. एक बोलता है -7/3, एक बोलता है -5/2. तो दोनों में से एक तो राइट रहेगा ही है ना. अच्छी आइडिया है. अभी सर आप करके चेक करके बता दो कौन राइट है. आइडिया अच्छा है. दोनों ने सेम बोला रहता तो मैं दोनों को भी पूछ लेता क्यों. अभी वैसा नहीं है, एक बोलता ये वाला, एक बोलता वो वाला. समृद्धि, हुज राइट, यू और सुमैया? क्या लगता है कौन राइट है? समृद्धि, हुज राइट? सुमैया कौन राइट है? चलो देखते हैं. क्या पता, पता करते हैं. -7/3 into 2/2 and -5 into 3/2 into 3. ठीक है, 5/2 into 3 into 3. -7 into 2 is -3 2 is -5 into 3 is -2 into 3 is डिनोमिनेटर इक्वल हो गए. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट. सुमैया आपने ये किया नहीं, ये स्टेप आपने किया नहीं. ये किया नहीं, किया ना, नहीं किया ना आपने ये सर, स्टेप. माइनस के साइन नहीं दिए थे हमने. हाँ, तो इसीलिए गलत हो गया, उल्टा हो गया आपका आंसर. और समृद्धि का राइट आया. -15 will come over here, -14 will come over here, so -14 will be greater.
-14 will come on the right hand side, -15 will come on the left hand side. So this number will be smaller. So therefore -7 upon 3 will be greater and -5 upon 2 will be smaller. Are we clear now? These are the steps that you have to follow. ठीक से कर लो. समृद्धि, you have done all these steps? ये स्टेप्स करना जरूरी है बेटा, मार्क्स उसके ऊपर है. विदाउट दी स्टेप्स इट्स गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट. विदाउट दी स्टेप्स इट्स गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट. ठीक है, अभी आप लोगों ने ये किया तो ये भी करके एक बार देख लो. 7 upon 3 एंड 5 upon 2, इसमें कौन सा बड़ा है? 7 upon 3 एंड 5 upon 2. ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले और फिर 7 upon 3 एंड 5 upon 2 वो करना है. डन? सुमैया, यस सर. कौन सा वाला ग्रेटर है? कौन सा वाला ग्रेटर है? 15 upon 6. 15 upon Sorry, 6 कहाँ 5 दिया? upon 2. Sorry. 5 5 upon 2 इज ग्रेटर. समृद्धि, आपका क्या आया आंसर? समृद्धि, व्हाट्स योर आंसर? हाँ, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही. 5 upon 2. ओके, यू आर राइट, दिस इज ग्रेटर. मैं सॉल्व नहीं करता था बेटा, सिंपल सा ये था. माइनस में ये है, दोनों प्लस हो गया तो उल्टा हो जाएगा. सिंपल है. ठीक है, बट नंबर सेम रहने चाहिए, सिर्फ साइन ऑपोजिट हो गए. जैसे इनके जो नंबर्स है, यही नंबर अगर है 7 upon 3 और ये नंबर है 5 upon 2, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. द साइन विल चेंज, इट विल रिवर्स इटसेल्फ. आर वी क्लियर? ओके, यस और नो? ओके, चलो ये वाला चेक करो. चेक दिस वन. हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है समृद्धि. सर मैम कुछ बोल रहे हैं. नहीं, मैम दूसरी जगह बात कर रहे हैं, तुम ये करो. 3 upon 5 एंड 6 upon 10. यस सुमैया, हो गया तो बताना. वंस यू फिनिश प्लीज लेट मी नो.
सुमैया डन। बहुत टाइम लग रहा है ये नंबर कंपेयर करने आप लोगों को। करना क्या है? हुआ सर। समृद्धि डन। समृद्धि, यस सर। व्हाट्स सो डिफिकल्ट इन दैट? नहीं समृद्धि, both are equal. In fact, you don't even have to multiply by 10. You could have said 3 into 2 upon 5 into 2 and 6 upon 10. अगर ऐसे भी आप करते तो ये डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल होते। जो आपने किया वो रॉन्ग नहीं है, जो आपने किया वो रॉन्ग नहीं है, राइट है। 3 into 2 is 6, 5 into 2 is 10, 6 upon 10. So how can any number be greater? This will be equal. So you say this is equal. Is that clear? लिखो it is equal. Now I am going to give you some very simple rules, okay, 3 basic rules, so that you can identify which number is greater. जो हमने किया उसी के ऊपर है, कुछ नया नहीं है. It's the same thing what we have done, but we'll write it as a rule. So please write down. If A upon B and C upon D, if A upon B and C upon D are rational numbers, if A upon B and C upon D, if A upon B and C upon D are rational numbers, if A upon B and C upon D are rational numbers such that B and D are positive, such that B and D are positive, that means denominators are positive, denominator negative नहीं है, denominator positive है, such that B and D are positive. And now I'll give you the 3 basic ideas जिससे आपको पता चलेगा. Okay, if A into D, okay, if A into D is less than B into C, then if A into D is less than B into C, then A upon B is less than C upon D. Then A upon B is less than C upon D. Second, if A into D is equal to B into C, then A upon B is equal to C upon D. Is equal to C upon D. And third is, if A into D is greater than B into C, then A upon B is greater than C upon D. Then A upon B is greater than C upon D. Okay? ये रूल्स लिख लो. अभी जो एग्जांपल्स किए थे हमने वो एक बार फिर से चेक करेंगे अपन इसी के हिसाब से, and we'll see if it works out or not. It will work out, of course. You will see that. Finished copying? Let me know. एक्सरसाइज 1.2 भी करनी है आज. 1.1 एंड 1.2 दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में करने हैं. सुमैया, समृद्धि, इज दैट क्लियर? Yes, sir. 1.1 and 1.2. Okay, both the exercises have to be done. Yeah, tomorrow we are going to look at decimal representation of rational numbers. That is a very important topic. उससे ज्यादा शायद हम नहीं कर पाएंगे कल. Not to worry, लेकिन ये आपको करना है. Okay. Chalo, done? Yes, sir. Okay. Now let's look at the previous example. We had 7 upon 3 and 5 upon 2. Sorry, minus 7 upon 3 and minus 5 upon 2. इसको A, B, C, D ले लिया. तो A into D, that is minus 7 into 2 and minus 5 into 3. So minus 14 minus
15 minus 14 is greater, this is greater. यही किया था हमने, correct? So this is the same thing. If A into B is greater than B into C, then A upon B is greater than C upon D. समझे? तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है. जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है. ऐसा एक के नीचे एक आप लिख सकते हो. दूसरा हमने किया था was what was that other number that we had taken? -7 वाला तो कर लिया आपने. दूसरा नंबर was -7/9. वही था ना, -7 and 4. So -7/9 and 4/5. So all you had to do was -7 into 5 and 4 into 9, -35 and 36. This is greater. वो तो वैसे भी मालूम पड़ा था हमको माइनस साइन से ही, वैसे भी हमको पता चला ही था अभी, और इससे भी. So this is the rule that you are going to apply. Is this clear? All you are going to do is A upon B और C upon D दिया है, तो A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे. A को D से, B को C से, मतलब न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, ये न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, और फिर देखो कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कौन सा बड़ा है. जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है. जो प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ, जो प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है वो ही फ्रैक्शन बड़ा है. इज दैट क्लियर? इफ A into D is greater, तो A वाला फ्रैक्शन बड़ा है. इफ B into C is greater, तो B into C is greater, then C वाला फ्रैक्शन बड़ा है. A into D is greater, then A वाला फ्रैक्शन बड़ा है. If B into C is greater, then C वाला फ्रैक्शन बड़ा है. Is that clear? Okay. Try exercise 1.1 and 1.2 दोनों करना है. जो भी नहीं आएगा इसमें कल आप मुझे पूछेंगे, और फिर हम डेसिमल एक्सपेंशन, वो आगे का पार्ट है, वो आगे करेंगे. लेकिन पहले ये दो चीजें आप करेंगे, दोनों भी एक्सरसाइज 1 and 2, और वो होने के बाद आप मुझे उसमें जो भी डिफिकल्टी है वो कल पूछोगे. आर वी क्लियर विद दिस, समृद्धि? Yes, sir. Okay, so then we'll end today over here. Tomorrow you'll have your regular first class, second class will be maths class. In that we will continue after this. ठीक है, चलो. सुमैया स्कूल स्टार्ट हो गया बेटा? नहीं सर. कुछ नहीं ना? समृद्धि? नहीं सर, उनके हो गए वे ऑनलाइन स्टार्ट. उन्होंने किसके? समृद्धि के? ठीक है. हाँ. अच्छा, समृद्धि क्या चल रहा है स्कूल में? समृद्धि, व्हाट आर यू डूइंग इन स्कूल? नो आइडिया. आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही है बेटा. ठीक है, आप मुझे बाद में मैसेज कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, चलो, we'll wind up over here today. Do the exercises, whatever difficulties we'll address it tomorrow. Take care, bye.